Welcome to International Islamic University, Islamabad School's Sahiwal campus. Online lectures. Grade 5. Welcome to online lectures. This lesson is for subject science, grade 5, unit number 3, lesson number 1, lecture number 4, body and nutrition. General instructions. Students, bring your science book and notebook. Keep them open during lecture. Write date and day. Listen to the teacher attentively. Mark all the important points set by your teacher on your books. Do additional question and answers on science classwork notebook. Now open page number 28. First of all, mention date and day on the top of the page. And now let's begin with the question number 1, which is complete the word to label the picture. So students, first picture is of a fish. So complete the blanks FISH. Second picture is of an orange. So complete the blanks as ORANGE, orange. Third picture is of butter. The spelling of butter is BUTTER, butter. Now the last picture is of spinach. What is the spelling of spinach? SPINACH, spinach. Now students, you already know about the spellings of these pictures. First picture is a bowl full of rice, RICE, rice. Second picture is a bowl full of beans, BEANS, beans. Third picture is of milk, MILK, milk. And the last picture is of meat, MEAT, meat. Students, there is another question under these pictures. The question is, why can't a person live by eating only candies? Students, think by yourself. If you don't eat your breakfast, your lunch, अगर आप ब्रेकफास्ट और लंच में क्या खाते हैं? ज़्यादातर रोटी खाते हैं, राइस लेते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स खाते हैं. अगर आप इन सब के सिवा ओनली कैंडीज़ खाएं अपने पूरे दिन में, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सारे टाइम, तो क्या आप ज़िंदा रह सकते हैं? यही बात वो उस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या एक पर्सन सिर्फ कैंडीज़ खा के ज़िंदा रह सकता है? Students, think yourself and write the answer of this question in your homework notebook. Now, for lesson number 1, what are the nutrients in my body? Students, first of all, tell me what the nutrients are. Students, क्या आप जानते हैं nutrients क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरी होते हैं किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए. वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो कंपोनेंट्स जो हमारी खुराक से हमें मिलते हैं, और वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर क्या चीज़ इंक्लूड होती है, क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स होते हैं उस सारे हमारे खाने के अंदर. हमें वो क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं? वो हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, ताकि हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ प्रॉपर तरीके से परफॉर्म हो सकें. सो स्टूडेंट्स, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ डाइट? स्टूडेंट्स, डाइट वो खुराक है जो हम अपनी डेली रूटीन में इनटेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. वो खुराक में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? यकीनन ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, etc. Now students, start with the reading. Diet. All the living things need energy and the nutrients in order to live, grow and repair themselves. Plants take its nutrients through their roots. Now students, tell me how living things need energy and nutrients in order to live, grow and repair themselves. स्टूडेंट्स, हमें हमेशा खुराक की ज़रूरत होती है ताकि हमारी बॉडी ग्रो कर सके. हमारी बॉडी क्या करती है, उस खुराक के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए होते हैं, जो एनर्जी कंपोनेंट्स उसको चाहिए होते हैं, वो क्या करते हैं? अब्जॉर्ब कर लेती है. स्टूडेंट्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज़ द अब्जॉर्प्शन कंपोनेंट, अब्जॉर्प्शन ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. सो स्टूडेंट्स, टेल मी वेयर द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड एब्जॉर्ब्स इन आवर बॉडी. स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएं कि हमारी बॉडी का वो कौन सा ऑर्गन है जो कि न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है. ओके.
फॉर द नेक्स्ट पार्ट, प्लांट्स। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, और प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कैसे करते हैं? अपने रूट्स के थ्रू। स्टूडेंट्स, हम पानी प्लांट को पत्तों से तो नहीं ना देते, हम क्या करते हैं, उसकी सॉइल में पानी डाल देते हैं। और अगर खाद देते हैं तो आपने कभी देखा है कि कोई पर्सन, कोई गार्डनर पत्तों के ऊपर खाद लगा रहा हो या फर्टिलाइज़र वो पत्तों के ऊपर लगा रहा हो? कभी भी नहीं लगाता। पत्तों के ऊपर क्या की जाती है? स्प्रे की जाती है। स्प्रे कभी भी प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करती, वो जस्ट उसको इंसेक्ट्स और हार्मफुल जो बैक्टीरियोसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनसे बचाने के लिए की जाती है। न्यूट्रिएंट्स हमेशा जो है ना, वो सॉइल में ऐड किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है थ्रू देयर रूट्स, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है थ्रू देयर लीव्स। स्टूडेंट्स, सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को ज़रूरी क्यों होते हैं? बिकॉज द प्लांट्स हैव टू डू photosynthesis to make their food. Now, animals have to eat and drink things to get their nutrients and energy. The group of these things an animal typically eats or drinks is called that animal's diet. Students, on page number 29, first topic diet, the last paragraph from the group of things that an animal typically eats or drinks is called that animal's diet. Students, highlight this definition. It is the definition of diet. Now students, for the next question, read and encircle true and false. Correct the false statement with the partner. Students, what is energy? Every day we need to eat and drink to get enough energy for all the activities you do. Students, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमारी डाइट से मिलती है। हमारी डाइट में वो कंपोनेंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो हमारी बॉडी में क्या होता है, यूज़ होती है। सो for the next topic, running, climbing, mounting and playing basketball take a lot of energy. 1 calories is the amount of energy needed to raise 1 gram of water by 1 degree Celsius. So students, what is energy? मैंने आपको एनर्जी के बारे में पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है कि एनर्जी क्या होती है, हमें किस चीज़ के किस काम के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ऑब्वियसली ऑल आवर एक्टिविटीज़ आर डन बाय एनर्जी। अगर हमारे अंदर एनर्जी ना हो तो क्या हम काम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यू नीड एनर्जी फॉर थिंकिंग, स्लीपिंग। एटलीस्ट आपको जो है ना, इतनी एनर्जी आपकी बॉडी में होनी चाहिए कि आप अपने रेगुलर फंक्शंस जो है ना परफॉर्म कर सकें। अगर आपको मसल पेन है या आपका कोई मसल सॉर है तो क्या आप अपना वो बॉडी ऑर्गन सही से यूज़ कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। आपको एनर्जी चाहिए बॉडी को प्रॉपरली यूज़ करने के लिए। अब आ रही है बात, व्हाट इज़ कैलोरीज? A calorie is an amount of energy needed to raise 1 gram of water by 1 degree Celsius. स्टूडेंट्स, एक कैलोरी क्या होती है? एक कैलोरी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि 1 ग्राम ऑफ वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दे। सो स्टूडेंट्स, बिकॉज अ कैलोरी इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, कैलोरीज क्या होती है? बहुत एक छोटा सा अमाउंट होता है एनर्जी का। द एनर्जी फूड प्रोवाइडेड रिपोर्ट एज किलो कैलोरीज। आपने देखा होगा कि खानों के ऊपर आपने मेजॉरिटी जो आप चिप्स लेते हैं या आप कोई ड्रिंक लेते हैं या आप कोई भी फूड आइटम लेते हैं, उसके लास्ट पे एक न्यूट्रिशन चार्ट होता है, उसके अंदर कैलोरीज मेंशन होती हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा है कभी कैलोरीज़ की फॉर्म में लिखी हों? कभी भी नहीं लिखी होती। कैलोरीज़ हमेशा किलो कैलोरीज़ में लिखी होती हैं, क्योंकि आप देखें कैलोरी की डेफिनेशन से कि 1 ग्राम ऑफ वाटर, स्टूडेंट्स 1 ग्राम ऑफ वाटर इज़ सो स्मॉल क्वांटिटी टू मेजर, सो द क्वांटिटी ऑफ कैलोरीज आर आल्सो ऑलवेज गिवन इन द फॉर्म ऑफ किलो कैलोरीज। और हम इसे डिनोट किससे करते हैं? किलो कैलोरीज को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ द ट्रू फॉल्स एट द बॉटम ऑफ द पेज, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, द न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, इन योर फूड। स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताएं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके खाने में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं?
So, students, what are nutrients? Nutrients are the material in your food that your body uses to energy to grow and to repair itself. Students, आपने कभी देखा है आपको जब चोट लग जाती है क्या ऑर्नामेंट तो आप उस पर अप्लाई करते हैं, आप कभी कभी उस पर बैंडेज भी अप्लाई कर देते हैं. स्टूडेंट्स, क्या बॉडी खुद को हील नहीं कर लेती? ऑब्वियसली बॉडी खुद को हील कर लेती है. अगर आप अपने चोट के ऊपर एंटीसेप्टिक के अलावा कोई और ऑर्नामेंट अप्लाई ना भी करें तो क्या करती है, बॉडी खुद को रिपेयर कर लेती है. तो उसे ये स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेंथ उसे न्यूट्रिएंट से मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. स्टूडेंट्स, यू आर लुकिंग एट द पिक्चर विच सेज अ बैलेंस डाइट. स्टूडेंट, एक बैलेंस डाइट क्या होती है? एक बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, प्रोटीन्स और फैट्स, ये सारी चीज़ें पाई जाएं. एक इंसान अकेले प्रोटीन्स पे भी गुजारा नहीं कर सकता, अकेले कार्बोहाइड्रेट्स पे भी गुजारा नहीं करता, या सिर्फ वो अगर फैट्स लेता रहे तो भी वो गुजारा नहीं कर सकता. उसकी डाइट में इन चारों पांचों चीज़ों का एक बैलेंस अमाउंट में होना ज़रूरी है. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी दैट योर बॉडी यूजेस. स्टूडेंट्स, आपको कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से मेन सोर्सेज से मिल सकते हैं? स्टूडेंट्स, आप कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ कर सकते हैं. पोटैटो इज़ द मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. आप बॉयल पोटैटो जो होता है उसके अंदर मेजर सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स. जो आप रोटी खाते हैं, जो राइस आप यूज़ करते हैं, इसके अंदर मेजोरिटी कंपोनेंट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है. नाउ स्टूडेंट्स, अबाउट 45 and 65 to 65% ऑफ योर कैलोरीज, किलो कैलोरीज शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स. आपकी बॉडी में एनर्जी का कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट 45 to 65% कहाँ से हमें प्रोवाइड होता है? किलो कैलोरीज से. नाउ स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू द कैटेगरी. फर्स्ट कैटेगरी इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. वन शुगर ग्लूकोज इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी सेल्स. स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें क्या चीज़ आती है? शुगर्स आती हैं. शुगर आती हैं, ये स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये मेजर सोर्स होते हैं किसका? हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का. अब देखिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे कि स्टार्च. इट इज़ द वन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. स्टूडेंट्स, हमें स्टार्च कहाँ से मिलता है? आपके लिए एक एक्टिविटी है, एक एग्जाम्पल है. अगर आप परफॉर्म करना चाहें तो पोटैटो कट करते हैं जब हम, तो आपने कभी देखा है नाइफ़ के ऊपर वाइट वाइट सा एक कंपोनेंट लग जाता है. आपके हाथों पे भी एक वाइट वाइट सा कंपोनेंट लग जाता है, उसे बोलते हैं स्टार्च. वो हमारे पास क्या चीज़ होती है? स्टार्च होता है. स्टूडेंट्स, उसके अलावा आपने मतलब फिज़िकल फॉर्म में देखा होगा कॉर्न स्टार्च, या पाउडर फॉर्म में स्टार्च भी देखा होगा, जो हम मेजोरिटी किस चीज़ में यूज़ करते हैं? सूप्स वगैरह में यूज़ करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, फाइबर इज़ एन अदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दैट प्लांट्स मेक. स्टूडेंट्स, हमें फाइबर्स कहाँ कहाँ से मिलते हैं? जो भी हमारी फूड में प्लांट्स होते हैं, मतलब वेजिटेबल्स वगैरह हैं, उनसे हमें क्या चीज़ मिलती है? एक मेजर सोर्स मिलता है किनका? फाइबर्स का. नाउ व्हाट आर फैट्स? स्टूडेंट्स, व्हाट आर फैट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंप्लीट द टॉपिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. स्टूडेंट्स, हम लोगों को, आप अपनी बुक पे देखें, पेज नंबर है आपका 30. द टॉपिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देयर सेज. स्टूडेंट्स देखें, वन शुगर ग्लूकोज इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर योर बॉडी सेल. क्योंकि ग्लूकोज एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, एक स्मॉल यूनिट है और ये मेजर सोर्स है किसका? एनर्जी का. आपने कभी देखा है कि जब आपका एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है तो डॉक्टर आपको क्या चीज़ देता है? वो आपको पाउडर फॉर्म में ग्लूकोज देता है ताकि आप उसे मतलब इनटेक करें आप उसका, और रैपिड फॉर्म में आपकी बॉडी सेल्स को क्या मिल जाए? एनर्जी मिल जाए. ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी कैपेबल होती है किस चीज़ का? क्या काम करने की? स्पेशली ये काम करने की कि वो शुगर मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट कर ले? ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर ले. नाउ फॉर द स्टार्च, मैंने आपको स्टार्च के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है कि स्टार्च क्या होता है. स्टार्च हमें ना लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी प्रोवाइड करता है. इट इज़ मैंशन इन योर रीडिंग दैट स्टार्च प्रोवाइड एज द लॉन्ग लास्टिंग सोर्स ऑफ एनर्जी. स्टार्च हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है और मतलब कि खुराक खाने की काफ़ी देर बाद भी, काफ़ी अरसे बाद भी वो जो हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक फैट्स ऑन पेज नंबर 31. इट इज़
फैट्स आर लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, दे बोथ कंटेन अ लॉट ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स, हमें फैट से भी बहुत सारी एनर्जी मिलती है, मगर आपको पता है कि फैट्स टू टाइप्स के होते हैं। मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, पहले देखें। योर बॉडी हाउ एवर कैन यूज़ द फैट्स यू ईट टू फॉर्म पार्ट्स ऑफ योर सेल्स surface and to make fatty tissues in your body that protects your organs and protect you from cold। स्टूडेंट्स, आपको ये मालूम है या नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन कौन से होते हैं जिनके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। जैसे कि हमारा हार्ट, हमारा लंग्स, हमारे लंग्स, हमारा लिवर, इस तरह के जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर क्या होती है, फैट्स की एक प्रॉपर लेयर होती है। वो फैट्स की लेयर क्या प्रोवाइड करती है, वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को एक कुशन प्रोवाइड करती है, ताकि अगर कोई ट्रॉमा हो, कोई सडन ट्रॉमा हो, तो क्या हो, हमारे वाइटल ऑर्गन्स पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट ना हो। और वो फैट्स हमें क्या एक मेजर हमारी बॉडी में रोल प्ले करते हैं कि ये हमें कोल्ड से बचाते हैं। कोल्ड क्या होता है, कोल्ड को उर्दू में बोलते हैं सर्दी ज़ुकाम। हमें कोल्ड से मतलब ठंड लगने से भी बचाते हैं क्या चीज़, हमारे फैट्स। नाउ देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फैट्स इन आवर फूड। फर्स्ट आर saturated fats. What are saturated fats? Saturated fats are solid at room temperature and come from animals. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा एनिमल सोर्स से हमें मिलने वाले फैट्स जैसे कि घी। अच्छा, चलें कॉमन एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपने कभी देखा है कि जब हम कोई सालन बनाते हैं फ्रॉम मीट और बीफ का जब हम सालन बनाते हैं तो उसके ऊपर जो एक ऑयली लेयर आ जाती है वो रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाती है, सॉलिड हो जाती है। वो क्यों सॉलिड होती है, क्योंकि वो हमारे पास क्या होते हैं, सेचुरेटेड फैट्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एग्जांपल के साथ इस बात को एक्सप्लेन किया है। होप यू विल अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। नाउ बटर एंड फैट्स इन मीट्स आर सेचुरेटेड फैट्स। Okay, unsaturated fats. What are unsaturated fats? Unsaturated fats are liquid at room temperature and come from plants. Students, आपने देखा होगा हमारा जो कुकिंग ऑयल होता है वो हमारे पास रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। स्टूडेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड क्यों होता है, क्योंकि वो एक अनसेचुरेटेड फैट है। और ये हमें, इसका सोर्स क्या होता है मेजरली, आपने कभी एड्स में सुना होगा या फिर स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटली अपने ज़रा देखिएगा कुकिंग जो ऑयल है उसके पैकेट के ऊपर कि क्या लिखा होता है, सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल। ये हमें मिलते कहाँ से हैं, प्लांट सोर्सेज से हम इन अनसेचुरेटेड फैट्स को हासिल करते हैं। ट्रांस फैट्स। स्टूडेंट्स, ट्रांस फैट्स कौन से होते हैं? ट्रांस फैट्स वो फैट्स होते हैं जो कि हम हासिल करते हैं, कैसे ब्लेंड करते हैं हम, जब वेजिटेबल ऑयल्स को सॉलिड फैट्स के साथ, जैसे कि डेफिनेशन में बताया गया, ट्रांस फैट्स आर मेड व्हेन केमिकल्स आर यूज्ड टू चेंज वेजिटेबल ऑयल इनटू अ सॉलिड फैट। सो स्टूडेंट्स, ट्रांस फैट्स वो हमारे पास होते हैं, वो फैट्स जो कि हम बाय केमिकल चेंज जब वेजिटेबल ऑयल को सॉलिड फैट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं, ट्रांस फैट्स आते हैं। स्टूडेंट्स, ये सेमी सॉलिड फैट्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मार्जरीन। स्टूडेंट्स, आपने ब्रेकफास्ट में अक्सर औकात यूज़ किया होगा, ब्रेड के साथ मार्जरीन यूज़ करते हैं। वो मार्जरीन हमारे पास ट्रांस फैट होता है, क्योंकि हम वो वेजिटेबल ऑयल को विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स किस में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड फैट में। सो इट इज़ अ ट्रांस फैट। So students, most important information with related to carbohydrate is, स्टूडेंट्स, हमारे लिए अनसेचुरेटेड फैट्स जो होते हैं ना वो हेल्दी होते हैं इफ़ यू डू नॉट ईट टू मच। अगर हम बहुत ज़्यादा तादाद में अनसेचुरेटेड फ़ैट नहीं लेते तो अनसेचुरेटेड फ़ैट मेजरली हमारे लिए क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं। सेचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स आर नॉट वेरी हेल्दी, ठीक है। 30% ऑफ और लेस ऑफ आवर डेली कैलोरीज शुड कम फ्रॉम फैट्स। स्टूडेंट्स, हमें ज़्यादा फैट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं लास्ट लाइन जो आपकी पैराग्राफ की है हमें क्या बता रहा है कि ओनली 30% और लेस ऑफ आवर डेली कैलोरीज शुड कम फ्रॉम फैट्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कोलेस्ट्रॉल। व्हाट इज़ कोलेस्ट्रॉल?
Cholesterol is a waxy substance that is like a fat and it also necessary to form your cell's surface. So students, कोलेस्ट्रॉल एक और तरह का हमारे पास एक न्यूट्रिएंट पाया जाता है हमारे फूड के अंदर. स्पेशली कहाँ पे ये पाया जाता है? ज़्यादातर ये एग यॉक्स में पाया जाता है. सो स्टूडेंट्स, क्या कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? ये भी हमारे लिए ज़रूरी है क्या बनाने में? सेल्स के सरफेस को फॉर्म करने में. नाउ स्टूडेंट्स, मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनिमल्स कंटेन कोलेस्ट्रॉल. स्टूडेंट्स, हम एनिमल सोर्स से जितने प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं उनमें मेजोरिटी क्या हमारे पास होता है? कोलेस्ट्रॉल. स्टूडेंट्स, लेट्स look at the reading on page number 31. The last topic, cholesterol. Your own liver makes all the cholesterol that your body needs. आपका अपना ही लिवर वो सारा कोलेस्ट्रॉल बना लेता है जितना आपकी बॉडी को चाहिए होता है. सो यू शुड अवॉइड ईटिंग टू मच फूड दैट हैज़ अ लॉट ऑफ कोलेस्ट्रॉल. आपको वो फूड ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद हो काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में. डाइट दैट आर हाई इन कोलेस्ट्रॉल कैन कॉज हार्ट डिजीज़. स्टूडेंट्स, आपने ये बात अक्सर सुनी होगी कि जिन लोगों को हार्ट डिजीज़ होता है उनको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो अवॉइड करें ऐसे फूड्स जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट क्या होती है? ज़्यादा होती है. स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी को जितना कोलेस्ट्रॉल नीडेड होता है वो हमारा लिवर खुद ब खुद ही प्रोड्यूस कर लेता है. हमें बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल आउटसाइड द बॉडी इनटेक करने की ज़रूरत होती है. सो वी हैव टू अवॉइड हाई कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्ट्स इन आवर डेली डाइट. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द टॉपिक प्रोटीन ऑन पेज नंबर 32. इट इज़, what are proteins? Proteins are the long chain of smaller molecules called amino acids. Students, प्रोटीन हमारे पास क्या होते हैं? ये एक लॉन्ग चेन्स होती हैं किनके? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम अमीनो एसिड्स बोलते हैं. देयर आर 32 अमीनो एसिड्स दैट योर बॉडी नीड्स. हमारी बॉडी को कितने अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है? 32 अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है. नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट द रीडिंग ऑन पेज नंबर 32. Let's read with me. Protein are the nutrients in your food that are the major building blocks of your body tissues. Students, हमारी बॉडी टिश्यूज़ को फॉर्म करने के लिए जो हमारे पास मेजॉरिटी कंपोनेंट हमारी बॉडी नीड करती है वो क्या होता है? प्रोटीन. प्रोटीन्स कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू विद एनर्जी बट ओनली 10 to 35% ऑफ योर कैलोरीज ईच डे शुड कम फ्रॉम प्रोटीन. स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी को इतना ज़्यादा ज़रूरी होने के बावजूद सिर्फ 35% हमारी बॉडी का जो कैलोरीज़ के काउंट है वो प्रोटीन से पूरा होता है. प्रोटीन्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड अमीनो एसिड. एज आई एक्सप्लेन बिफोर, देयर आर 23 अमीनो एसिड्स दैट योर बॉडी नीड्स. आपकी बॉडी को सिर्फ 23 अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है. योर बॉडी कैन मेक हाफ ऑफ दीज बाय इटसेल्फ. हमारी बॉडी आधे जो है ना वो खुद ही बना लेती है. द अदर हाफ मस्ट कम फ्रॉम योर फूड. दीज अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स. स्टूडेंट्स, हमारे जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स का नंबर है वो ऑलमोस्ट होता है 12. तो वो 12 अमीनो एसिड्स ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट में वो चीज़ें ऐड करें जिसमें वो 12 अमीनो एसिड्स हमें ज़रूरी हैं हमारी बॉडी के यूज़ के लिए वो ज़रूरी हैं. नाउ स्टूडेंट्स, रिपीट विद मी, व्हाट आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स? एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, हमें वो अपनी डाइट में लेना चाहिए. हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए वो अमीनो एसिड ज़रूरी होते हैं. तो हम अपनी बॉडी को वो प्रोवाइड कैसे कर सकते हैं? थ्रू डाइट. नाउ, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स? एनिमल सोर्स. हमें प्रोटीन्स एनिमल से भी मिलते हैं. कैसे? मीट, फिश, एग्स एट्सेट्रा. सो स्टूडेंट्स, आपको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ कि आपने देखा है कभी जो लोग जिम जाते हैं या एक्सरसाइजेस ज़्यादा करते हैं उनको डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है कि वो ज़्यादातर अपनी डाइट में क्या चीज़ इंक्लूड रखें? प्रोटीन्स को इंक्लूड रखें, क्योंकि ये हमारी बॉडी टिश्यूज़ फॉर्म करती हैं, मसल्स टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं ये. What are the plant source of proteins? These are beans, nuts, grains, etc. Now students,
Look at the reading from the second paragraph. However, since different plants make different essential amino acid, vegetarians or the people who do not eat meat or fish can combine their source of plant proteins to get all the essential amino acid in their diet. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जो essential amino acids हैं वो हमारी बॉडी को ज़रूरी हैं, हमें वो लेने ही पड़ेंगे अपनी डाइट में, वरना हमारी बॉडी की फंक्शनिंग क्या होगी, ख़राब हो जाएगी। तो अब वो लोग जो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन वो लोग होते हैं जो मीट यूज़ नहीं करते अपनी डाइट में, वो ओनली प्लांट्स पे रिलाई करते हैं इन द टर्म्स ऑफ देयर फूड। सो अब क्या होता है कि डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड हमें हासिल हो जाते हैं किन से, प्लांट सोर्स से। तो वो अपनी उस कमी को जो एसेंशियल अमीनो एसिड मीट में पाए जाते हैं किससे पूरा कर सकते हैं, ओनली प्लांट्स से। सो स्टूडेंट्स, लुक एट द पिक्चर on the side of the reading. Together, rice and beans provide all the essential amino acids. वो बता रहा है कि अगर आप चावल और बीन्स क्या होती हैं, हमारी दालें, अगर आप चावल और दालें कंबाइंड फॉर्म में लेते हैं तो वो क्या करती हैं, हमें सारे के सारे वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रोवाइड कर देती हैं, खा आप मीट खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ दैट। Okay students, solve the exercise below by yourself. Now move to the part number 8. Research your favorite form of protein. How many grams of the nutrients below does 100 grams serving contain? Compare with a partner. Students, आपने अपनी मर्ज़ी का जो है ना एक मील डिसाइड करना है और फिर आपने देखना है कि उसकी 100 ग्राम्स ऑफ सर्विंग में कितने न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स कंसीडर अ इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ सर्विंग अ बीफ। स्टूडेंट्स, हम एक चीज़ पोज कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारी डाइट जो हम ले रहे हैं इस क्वेश्चन में एज अ स्टैंडर्ड वो क्या है, बीफ डाइट है। अब स्टूडेंट्स देखिए आप ज़रा इसके अंदर कितने प्रोटीन्स पाए जाएंगे, एक सर्विंग, सिंगल सर्विंग। स्टूडेंट्स, ये हम लोग कैटेगराइज किस पे कर रहे हैं, सिर्फ 1 पर्सन की सर्विंग पे। एक इंसान जितना खा सकता है, मतलब मैक्सिमम नहीं, एक इंसान को जितना सर्व किया जा सकता है उस सर्विंग में, मतलब 100 ग्राम्स ऑफ सर्विंग में कितने प्रोटीन्स होंगे, 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स कितने होंगे, लेस देन 1 ग्राम्स। अनसेचुरेटेड फैट्स कितने पाए जाएंगे, 5.5 ग्राम्स। सेचुरेटेड फैट्स की अमाउंट होगी इसके अंदर 3.3 ग्राम्स। कोलेस्ट्रॉल कितना होगा स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम बीफ वगैरह कुक किस में करते हैं, ऑयल में कुक करते हैं, तो हम लोगों को वहाँ से क्या हासिल हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल है हासिल। और ये क्या है, ये एक एनिमल सोर्स है, तो हमारे पास ज़्यादातर इसके अंदर क्या चीज़ पाई जाएगी, कोलेस्ट्रॉल, विच इज़ 60 ग्राम। उससे भी ज़्यादा हमारे पास क्या होगा इसके अंदर, सोडियम। स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी सोडियम होता है और जिन कंपोनेंट्स के साथ हम इसको कुक करते हैं, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ कुक करते हैं उसके अंदर भी सोडियम पाया जाता है, जैसे कि हमारे नमक। आपको पता है स्टूडेंट्स, सॉल्ट का केमिकल फार्मूला क्या होता है, इट इज़ सोडियम क्लोराइड, NaCl। सो सोडियम की तो अमाउंट वहाँ से ही हमें काफ़ी ज़्यादा हासिल हो जाती है, विच इज़ 65 ग्राम्स। नाउ स्टूडेंट्स, फिल द एक्सरसाइज पार्ट 8 with this chart. Now let's move to the next part, which is vitamins and minerals. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि विटामिन्स क्या होते हैं। एक विटामिन जो आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं वो होता है विटामिन सी। सर्दियों में हम जो सिट्रस फ्रूट्स इनटेक करते हैं, सर्दियों में भी गर्मियों में भी जो हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स पाए जाते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या चीज़ मौजूद होती है, कौन सा विटामिन मौजूद होता है, विटामिन सी। सो the citrus fruits are a rich source of vitamin C. Now, what are vitamins? Vitamins are made by living things. Living things से हमें क्या हासिल होते हैं, vitamins हासिल होते हैं। Example, vitamin C is found in oranges and other citrus fruits, etc. So students, let's do the reading with me. Instead of providing your body with energy, vitamins and minerals work as molecules that help in your body processing. Your body only needs a small amount of vitamins and minerals compared to carbohydrates, fats, and proteins. Vitamins are made by living things. Vitamin C is, for example, is found in oranges, other fruits, and dark green vegetables. It is essential for fighting infections,
स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि विटामिन सी, फॉर एग्जांपल विटामिन सी हम लोगों को किस चीज़ से बचाता है? कोल्ड से बचाता है। हम लोगों को जब ज़ुकाम हो जाता है तो डॉक्टर मेजॉरिटी जो मेडिसिन देता है उसमें भी विटामिन सी की कुछ कम अमाउंट होती है। हमारी बॉडी में अगर विटामिन सी ऑलरेडी मौजूद है तो बहुत लेस चांसेस हैं कि हमें सर्दी ज़ुकाम हो। बाकी हम लोगों को विटामिन मिलते कहाँ से हैं? सिट्रस फ्रूट्स आर द सोर्स ऑफ विटामिन। ऑल द लिविंग थिंग्स प्रोवाइड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन। और हमारी बॉडी को विटामिन बहुत ही थोड़ी कम अमाउंट में ज़रूरी होते हैं अपनी रेगुलर प्रोसेसिंग करने के लिए। व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स आर नॉट मेड बाय लिविंग थिंग्स बट कैन बी फाउंड इन फूड। स्टूडेंट्स, ये हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बनते तो नहीं हैं, मगर क्या हमें ये कहाँ से मिलते हैं? देयर सोर्स इज़ ऑल्सो फूड। नाउ लेट्स रीड विद मी आफ्टर दिस एग्जाम्पल। कैल्शियम कैन बी फाउंड इन मिल्क। स्टूडेंट्स, कैल्शियम क्या है? ये एक मिनरल है और ये हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क से। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इससे पहले जो एक्टिविटी की उसमें हम लोगों ने सोडियम की क्वांटिटी भी देखी थी। तो सोडियम भी हमारे पास क्या है? एक मिनरल है। सोडियम हमारे लिए बॉडी में किस काम के लिए यूज़ होता है? ये हमारे मसल की प्रोसेसिंग में यूज़ होता है। हम जब मसल कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच करते हैं तो हमारा इस सोडियम आयन उस काम के लिए हमारी बॉडी में यूज़ होता है। एंड कैल्शियम का तो आपको पता ही है किस लिए यूज़ होता है? हमारी बोन्स के फॉर्मेशन, ब्रेकेज, हमारे बोन्स के रिपेयरेशंस में, बोन ग्रोथ में हमें क्या चीज़ यूज़ होती है? कैल्शियम यूज़ होता है एज अ मिनरल। Now, let's read with me the topic of minerals. Minerals are not made by living things but can be found in food. Plants absorb minerals from the soil through their roots. When you eat plants or products from animals that eat plants, you get the minerals your body needs. स्टूडेंट्स, जब हम वो प्लांट्स इनटेक करते हैं जो कि जिन्होंने एब्जॉर्ब किए होते हैं ये मिनरल्स, तो वो मिनरल्स ऑलरेडी हमारी बॉडी में भी चले जाते हैं। मैं अब आपको एक मिनरल्स की और एग्जांपल देती हूँ। आपने सुना होगा कि स्पिनच इज़ अ रिच सोर्स ऑफ आयरन। सो व्हाट इज़ आयरन? आयरन इज़ अ मिनरल विच आवर बॉडी नीड्स। Next example is calcium. I already explained it to you. Now let's move to the other part. Your body use calcium to build bones, teeth. Iron can be found in dark green vegetables like spinach and red meat. Now students, read and calculate how many kilograms of water is present in your body. Students, let's solve the activity how many kilograms of water are in your body. Students, let's read before we solve this exercise. Water. Why is water the most important nutrient? हमारी बॉडी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट वाटर क्यों है? बिकॉज ऑल ऑफ योर बॉडीज प्रोसेस टेक प्लेस इन वाटर। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारा जो ब्लड है उसका भी मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? वाटर है। ब्लड इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड हमारी बॉडी में क्या करता है? फ्लो करता है। तो अगर हमारी बॉडी में वाटर की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा ब्लड क्या हो जाएगा? थिक होना शुरू हो जाएगा। नाउ अबाउट 65% ऑफ द हेल्दी पर्सन वेट इज़ मेड अप ऑफ वाटर. Water also helps to control your temperature and to eliminate waste your body makes. On a normal day, you need to drink about 2 liters of water to stay healthy. Students, आपको कितना पानी पीना चाहिए? एट लीस्ट 2 लीटर्स आपको हर रोज़ पानी पीना चाहिए ताकि आपकी बॉडी नॉर्मली फंक्शन करती रहे। हमें वाटर किस लिए नीड होता है? मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन अच्छे से किया था कि हमारी बॉडी क्या करती है? फूड में से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करती है। स्टूडेंट्स, वो जब न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करती है हमारी बॉडी उस न्यूट्रिएंट्स को इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उस प्रोसेस के दौरान हमारे पास कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, कुछ और प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो मेजरली हमारी बॉडी को नीड नहीं होती उनकी। तो होता क्या है वो, हम जब वाटर का इंटेक करते हैं वाटर के साथ हमारी बॉडी से क्या होते हैं? एलिमिनेट हो जाते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर राइट एडिशनल क्वेश्चंस. Open your notebook and write the questions. First question is define diet. The group of things that an animal typically eats and drink is called that animal's diet.
Second is define calorie. 1 calorie is the amount of energy needed to raise 1 gram of water by 1 degree Celsius. What are carbohydrates? Carbohydrates are the major source of energy that body uses. About 45 to 46% calories should come from carbohydrates. Question number 4 is what is starch? Starch is one type of a complex carbohydrates. What are saturated fats? Saturated fats are solid at room temperature and come from animal source. Question number 6 is what are unsaturated fats? Unsaturated fats are liquids at room temperature and come from plant source. Define protein. Protein are long chain of small molecules called amino acids. The last question is how many kinds of amino acid does our body needs? Our body needs 23 amino acids. नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस, ये सारी टर्म्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी ड्यूरिंग लेक्चर. नाउ मूव टू द होमवर्क. योर होमवर्क इज फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन डायरी, write date, subject, write down your diary. So students, what is your diary? Your diary is do exercise part 2 on page number 29. Next is do part 4 on page number 30, part 5 on page number 31, and the last part number 10 on page number 33 on your science book. End of the lesson, students. If you have any query about anything, any topic, any term you don't understand, let me know and I'll explain you in the next lesson. Allah Hafiz.